ओके, सो आज हम लोग जानने वाले हैं वीबीए फाउंडेशन के बारे में। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट इज वीबीए? आप में से कितने लोगों को पता है कि वीबीए क्या है? एंड आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फुल फॉर्म, एंड इट इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इट इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हियर। बट व्हेन यू think about VBA, somebody says VBA, what comes in your mind first? आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया होगा, आप लोग डेमो Automa- किए हो तो। हाँ, ऑटोमेशन और automation, okay, what else? macro, Micros, yes, correct. Coding. Coding, correct. Okay, so all of you are right. VBA is a programming language. Okay, it is developed by Microsoft, and it works with all Office application, and there are some other applications also where it works, right? So first of all, you don't need any additional software beyond your Office application. So अगर जो आपके पास में Excel है, VBA इनबिल्ट होता है, आपको कुछ अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पाइथन आप करोगे तो आपको हो सकता है एनाकोंडा या पाइचार्म और बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज डाउनलोड करना पड़े। अगर जो आप जावास्क्रिप्ट करते हो तो आपको पूरा जावास्क्रिप्ट का इंजन डाउनलोड करना पड़ता है। वीबी के लिए वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सेल इज इनफ। Okay, where do you use VBA? Mostly for automating repetitive work and data processing. Okay, that is the key thing you use VBA for. All right. और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सबसे इजीस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, राइट? मैंने खुद ने जब लैंग्वेज सीखना शुरू किया था, सो VBA वाज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई लर्न। ओके, मूविंग अ लिटिल बिट अहेड, अभी वीबीए क्या है हम समझ गए थोड़ा सा। ओके, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं वीबीए में, हम सीखेंगे उसको धीरे धीरे। बट वीबीए क्यों सीखना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो एक स्पेसिफिक चीज़ लेके आए हैं दिमाग में कि मुझे ये करने के लिए वीबीए सीखना है? और अगर जो है तो व्हाट इज इट, व्हाई यू वांट टू लर्न वीबीए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू कैन अनम्यूट एंड से व्हाई यू वांट टू लर्न वीबीए। actually, I wanted to make one application in Excel, and the repetitive work should be avoided. Maybe daily it takes half an hour, but I wanted to make it for 15 minutes, for 5 to 10 minutes. So I wanted to use this VBA for that. Okay, all right, no, that's perfectly correct, right? Anybody else? वीबीए क्यों सीखना चाहिए? At my work, yeah, at my work, we use macros for formatting, Excel data formatting. So there is a particular thing on this VBA, and they create the macro, and the work is done just in 2 minutes. So that's why I'm curious about this VBA. Okay, all right. Anybody else? Any other thoughts? All right, let me show you some of the ideas that I have put together. Why should I learn VBA? One, it is a jump start for automation. Any automation that you want to do with your work, VBA comes first in the mind. Second, it is also a path to data science. If you want to make career into data science, learning a programming language is definitely helpful. Second, it is third, it is easy to learn. Fourth, it has a wide application. It's not only limited to a particular industry scenario or base. You can use it in any industry, any company, anywhere. एक्सेल हर जगह यूज होता है, तो ये भी हर जगह यूज होता है। ये आपको अपना जो टर्न अराउंड टाइम होता है, दैट विल बी रिड्यूस विद दिस, सो इट विल हेल्प यू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। इट विल हेल्प यू इंक्रीज एक्यूरेसी, बिकॉज काम जो है मशीन करेगा, सो ह्यूमन एरर्स विल गो अवे। Then it will help you save time and money because you'll be able to do faster. It will help you progress in career because you'll be knowing one more language, and which will make you more employable. Right? So people will know that you have capabilities that can be used. So you'll become more employable, opening more job options for you. So let me go back to the screen. These are some of the reasons that you should use or learn VBA for. Make sense? Okay. Now, Yes. thank you.
Now another question. Why should you learn it now? Now how many of you wanted to do VBA from like 6 months back and now they are joining? Or probably even before that? How many of you are there? Yes, I. Yes, है ना? Yes, I'm on Lokesh. For many years. Right? So the thing is, you are already late by 6 months in that case. So there is no better time than now. Okay, a couple of reasons for that is most of the tasks that you do will be automated by 2025. You need to be the one who automates and not the one whose work is getting automated. There is a huge demand in and increasing demand in data analyst and data scientist work. If you don't learn now, you probably risk of lagging behind a lot of your peers. And it is a first step that will probably take to go to that dream job that you always wanted, be it analytics, be it anything. So these are some of the reasons you should learn VBA now. Now let's talk a little bit about the institute. Why you should learn it from us, AFCKS. Now AFCKS, let me talk a little bit about it. AFCKS is the full form of AFCKS is achieving freedom by creativity and knowledge sharing. So our aim is to help people uh, by creativity and knowledge sharing. So it's more of a knowledge sharing than an institute which is focused on training. Our aim is to help you learn and not just provide you instruction and complete the course. We really value the goals and dreams all of you had. This institute helped me grow in my career, so it can definitely help you. Some more advantages. So our trainer, including myself, our industry expert, we use one of the most simplest way to help you learn these things. Our courses are designed for everyone, not limited to only IT or engineering or science graduate. Even if you are from different background, this should work for you. We have plenty of job forums and query solving group which can support you throughout the throughout or after the session. We don't provide the job guarantee or job support. There are forums where students like you post jobs from their own companies where you can apply. And final benefits are the curriculum is research based and practical. So whatever you learn here, you'll be able to lift and shift to your company. Okay, you don't have to do a lot of changes into it because they are already practical. You just need to understand the code, make some tweak, and your code is ready for your actual use in your office. Okay, sessions are designed to be interactive and working professional, which means you don't have to spend extra time. आप लोग को extra time नहीं देना आपके घर पे. आपको बस क्लास के अंदर आना है, क्लास में फोकस करना है. ठीक है. अभी थोड़ा सा क्लास के बारे में जान लेते हैं. हमारा क्लास जो है वो 9 AM से 12 PM तक रहेगा एवरी संडे. करीब 4 महीने चलेगा. ओके, और कुछ 100 से ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इसमें कवर हो गए. अगर जो आपके पास में कुछ और एग्जाम्पल्स है जो आप कवर करना चाहते हो, आप लेके आ सकते हो, उसको कवर कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है. फीस 9000 है. अगर जो आप वन टाइम पे करते हो तो आपको 8100 पे करना पड़ेगा. पेमेंट मेथड्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है. एक एग्ज़ाम रहेगी जहाँ पे आपको एफसीकेस का सर्टिफिकेशन मिलेगा. आप मुझसे, आपके ट्रेनर से गाइडेंस ले सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए. आपको रेकमेंड हम लोग ये करते हैं कि जो भी आप सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको यूज़फुल रहे. सो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. इसके साथ मैं अपना भी नंबर शेयर करूंगा एंड ऑफ द क्लास, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? आई विल टेक अ पॉज फॉर 10 seconds. Yes. Yes. After this class, if you need any kind of the help for developing any macros or automations, can we get that help? Okay, you can reach out to us. There is a query solving group where you can post your query and we'll help you solve your queries. Thank you. Okay. Any other question, anyone? Okay. Usually we get a question like, what if I miss one of the class, right?
So if you miss one of the class, what happens is you will be able to do the revision in the next class itself. So you'll not basically miss anything. All our classes will start with the revision. Okay. So जो भी आप करोगे वो revision में cover होना ही है. So you'll not miss any part of it. All right. So Oh, yes. one question. Sorry, sir. Sure. Go ahead. As you said that it's a recording, right? So can you get the recording as well? So just to No, for future listen. classes, there will be no recording. We don't do recording for the actual class. The reason behind is initially we tried recording, but when we did recording, what happened is people were relying on recording only and they missed all the classes. So हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं. हाँ, ये सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. फ्यूचर में आपको क्लास अटेंड करना ही है. रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो एक मानसिकता हो जाती है लोगों की कि रिकॉर्डिंग है तो फिर रिकॉर्डिंग ही कर लेंगे, है ना, उसी के गो थ्रू कर लेंगे. सो लोग अटेंड करना मिस कर देते हैं. उसकी वजह से हमने रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं रखी. Yes, got it, sir. ओके. One question. Do we have any kind of exam at the end of the course? Yes, there will be exam at the end of the course and you need to pass it to get the certification. So you'll get two kind of certification. One certification after completing that exam and one a completion letter which says that you have completed the course. Okay, any other question? Alright, let's see then हम लोग क्या करते हैं VBA in action देखते हैं. So we'll see how VBA works. So I'm going to give you very simple examples. For example, let's say मेरे पास में नाम है. I want to convert them to email. So first चीज ये मुझे पूछ रहा है Have you selected the data? So ये मैसेज बॉक्स है, ये हमने कोड किया हुआ है. आप भी कोड कर पाओगे इसको. इस पे जब आप यस क्लिक करोगे तो आपको ये डोमेन नेम पूछेगा. सो लेट्स से हम देते हैं fcks.com और ओके कर देते हैं. सेपरेटर क्या होना चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, तो हम बोलते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर और ओके कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो ये ईमेल बन गई. ये काफी सिंपल सी चीज है ना, बट काफी बार काम आ जाती है. इसी तरीके से लेट्स से आपको नेम्स निकालने हैं. ईमेल आपके पास में दिए हुए हैं, यू वांट टू कन्वर्ट देम टू अ नेम. सो अगेन ये आपको पूछता है आपने डेटा सेलेक्ट किया क्या. प्लीज प्रोवाइड द डोमेन नेम, तो हम बोलते हैं यहाँ पे yahoo.com और ये आपको सेपरेटर मांगेगा जो हमारा अंडरस्कोर है और ओके कर देते हैं. तो ये आपको ये नाम में कन्वर्ट करके दे देगा. सो इसके अंदर ये बटन्स जो मैसेज बॉक्स थे और जो एक्शन हुआ ये सब आप लोग सीखोगे कि कैसे करते हैं. राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल लर्न. आई विल शो यू अनदर सिंपल एग्जांपल. सो लेट्स से ये नंबर है, इसका हमें फॉर्मेटिंग चेंज करना है. इसके बाद में हमें kg ऐड करना है. तो जस्ट नीड टू क्लिक अ बटन, दिस विल बी डन. टू रिमूव इट अनदर बटन. सो यू कैन ऐड रिमूव्स एज सिंपल एज दैट. अगर जो ये आपको मैनुअल करना पड़ता तो आपको ये कंट्रोल 1 दबाना पड़ता, कस्टम में जाना पड़ता, फिर यहाँ पे हैश डबल इनवर्टेड कॉमा kg हैश इस तरीके से डालना पड़ता. बट यू कैन डू इट विद अ बटन. ये सब कैसे करते ये आप सीखोगे. इसका बैकएंड क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोड क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल लर्न. ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल एज वेल. सो लेट्स से यू हैव सम डेटा. यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास में और मुझे ये स्प्लिट करना है. मुझे इसके अलग अलग फाइल्स बनानी है और उसको एक नया फोल्डर हम बना लेते हैं यहाँ पे और इसको हम नाम देते हैं डेमो स्प्लिट फाइल्स. राइट, देखो एम्प्टी फोल्डर है ना अभी. इसके अंदर हमें ये फाइल स्टोर करनी है सबके सब सेपरेट करके. तो कैसे करेंगे. सो ये देखो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है. अभी ये पूछ रहा है देयर आर 4 कॉलम्स इन सिलेक्टेड फाइल. उसने काउंट कर लिया खुद से. अगर जो ज्यादा कॉलम होता है तो ये बताता कितना है, आपको कितने यूज करने हैं फॉर स्प्लिटिंग. ये जो है इनपुट ये भी हमने बनाया हुआ है और आप भी सीखो कैसे बनाना है. सो लेट्स से मुझे 2 करने हैं, नेम एंड रीजन. ठीक है, सो ये पूछता है कि ठीक है सिलेक्ट कर लो कौन से चाहिए. सो नेम और रीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया. अभी मैं क्लिक करूंगा स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल्स.
सो ये मुझे पूछेगा कहाँ सेव करना है। सो अपनी पाथ मैं डाल देता हूँ। देखो अभी ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है कंप्लीटली, है ना। अभी मैं इस पे ओके कर देता हूँ और हम देखते हैं कितना टाइम लगता है फाइल क्रिएट करने में। अभी 9:25 हुआ है और देखो ये फाइल्स जो है क्रिएट होना शुरू हो गई है। सो विल सी हाउ मच फाइल्स आर क्रिएटेड, हाउ मच टाइम इट टेक्स। सो 20 फाइल क्रिएट हो गई है और हमने 9:25 को शुरू किया था, 9:25 में खत्म हो गया, 9:25 ही हुए हैं अभी तक। सो प्रॉब्ली लेस देन अ मिनट। So tell me, if you have to create this file, how much time you will take? अगर जो आपको ये फाइल्स मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी तो आपको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगे हैं। हमने 9:25 को शुरू किया था, अभी भी 9:25 ही है, अभी 9:26 हुआ है। सो प्रॉब्ली 30 सेकंड्स लगे होंगे इसको। आप लोगों को कितना समय लगता है अगर जो आप 20 फाइल क्रिएट करते हैं इस तरीके से? Just half an hour. 5 to 10 minutes. 5 to 10 मिनट्स, यू आर रियली फास्ट। सो आप एक 30 सेकंड्स में आप एक फाइल क्रिएट करेंगे। अगर जो आपको 5 मिनट्स लगता है तो 15 सेकंड्स में। सो आपको कैसे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फर्स्ट कम हियर, फिल्टर, लेट्स से फर्स्ट नेम, देन फर्स्ट रीजन, copy the data, paste, save as, give it a proper name, like इसके अंदर हमने यूज किया है अलेक्जेंड्रा टटारियो डैश ईस्ट। ओके, मुझे 30 सेकंड लगे शायद। सो हो सकता है आप लोग फास्ट हो, है ना। मैं थोड़ा नहीं, स्लो इससे ज्यादा भी हो सकता है, है ना। 10-15 मिनट। ठीक है, एक बार Yeah, काम करते हैं, इसको depends. डिलीट करते हैं। अभी हम लोग फिर से स्प्लिट करेंगे। इस बार हम 3 क्राइटेरियाज यूज करेंगे। ओके, सो विल यूज नेम, प्रोडक्ट एंड सेल्स। अभी सेल्स देखो काफी यूनिक वैल्यूज है, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे फोल्डर ले लेता हूँ मैं। देखते हैं क्रिएट हो रही है क्या। तो क्रिएट होना तो शुरू हो गई है, बट कितनी होती है हम देखेंगे। अभी हमने सेल्स का जो क्राइटेरिया कॉलम डाल दिया, उसके अंदर काफ़ी यूनिक वैल्यूज है, तो हो सकता है फाइल ज़्यादा क्रिएट होगी। ऑलरेडी 15 हो चुकी है। ट्वेंटी 4, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी 33 फाइल्स हो गई है, 38 एक्चुअली, 44। अभी 1 मिनट होने आया है शायद। 52, 5, 6, 7। ओके, 60 फाइल तो हो गई कम से कम, और 1 मिनट ख़त्म 9:28 पे ही है। अभी 1 मिनट ख़त्म हुआ है, 75 फाइल्स हो गई है। ऑलराइट, 9900। ओके, मुझे पता नहीं कितनी फाइल्स बनेगी, लेट्स सी। वन 120,
1:30 भी 2 मिनट्स हुए हैं, सो 65 फाइल्स एक मिनट में क्रिएट कर रहा है ये, विच इज लेस देन अ सेकंड फॉर ईच फाइल. मेरे ख्याल से हर एक लाइन के लिए अलग अलग बन रहा है, बिकॉज देयर टू मेनी कॉम्बिनेशंस. हम्म, हम्म। मुझे लगता है सेल्स वैल्यू यूनिक है तो इसलिए बहुत सारे फाइल्स बन रहे हैं. हाँ, हर एक चीज के लिए एक फाइल बनेगा, बट लेट्स सी कितना बनता है. एक चीज इसके अंदर ये हो हाँ. जाती है ना, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, इट विल नॉट हैंग और क्रैश और हम्म. otherwise. हम्म. And other thing is there is no errors, into zero errors will come up. Like look at the name and everything, they are perfectly given. So यही अगर जो आप लोग मैन्युअली करते तो I'm sure you would have taken entire day for creating this 200 file, because I would take Yes. with breaks. Yes. Yes. And I'll take at least 10 mistakes which I'll have to recover and correct again. 3 मिनट हो गई है, 215 फाइल के आसपास शायद बनी थी. Okay, अभी भी बन रहा है. चलो देखते ही कहाँ तक खत्म होता है. लेट इट गो, विल नॉट कैंसल दिस. $282. All right, keep going. All right. मेरे ख्याल से ये लास्ट रहेगा, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज लास्ट इन द नेम ऑफ द लिस्ट. सो होपफुली सचिन. ओके, फिर से शाहरुख आ गया टैब के साथ. आई थिंक टैब इज द लास्ट थिंग इन द प्रोडक्ट लिस्ट. सो ओके, नाउ वी आर डन. 381 फाइल्स. देखते टाइम कितना लग रहा था. हम लोग टाइम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे देखते हैं. हम लोगों ने शुरू किया था 9:27 से 9:34 हम पकड़ लेते हैं. सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स. 7 मिनट्स में हमने 381 फाइल्स क्रिएट किए हैं. सो दैट इज 54
फाइल्स, हम लोग 60 पकड़ के चल रहे थे, 54 फाइल्स पर मिनट। अगर जो आप लोग 381 फाइल्स लेट्स से 2 मिनट्स पर फाइल के हिसाब से भी कर लो, सो यू वुड हैव टेकन 12 hours 7 minutes। सो कितना टाइम बचा है आप लोगों ने? 12 hours 7 minute की जगह सिर्फ 7 मिनट में आपने काम कर लिया। So 7. this is the power of automation that you will be able to learn. Make sense, guys? Any questions? I'll come to the screen now. Any question from anyone? No. Okay, no worries. So I'll stop demo here. I'm going to end and stop recording as well. Let me see